Guys, welcome back in the next lecture of solid state. Today in this video we'll study about the various imperfection or the various defects which are present in a solid. So let's get started. For the starting of our topic, first of all we have to know the meaning of imperfection or defect. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्परफेक्शन और जो डिफेक्ट है उसका मीनिंग क्या है. सो if we talk about a solid, what is solid? Solid is basically a crystal in which the constituent particles are arranged. हम जो solid state में solids पढ़ रहे हैं, we are dealing about the crystalline solids. हम crystalline solids के बारे में बात कर रहे हैं. And in crystalline solids, the constituent particles are arranged in a regular pattern in 3-dimensional. Clear? So any departure of the constituent particles, perfectly ordered arrangement in a crystal is known as imperfection or defect. Imperfection or defect क्या है? Any departure of the constituent particles from perfectly ordered arrangement in a crystal is known as imperfection. So the definition of imperfection is, definition क्या हो जाएगी imperfection की? Imperfection, what is imperfection? Any departure of the constituent particles what are constituent particles? Constituent particles are either atom or molecule or ion. So any departure of the constituent particles from the perfect ordered arrangement in a crystal is known as imperfection or defect. इसे हम क्या कहेंगे? Imperfection. Now this imperfection or these defects in a solid arise either by the absorption of the heat by the crystal from the surrounding or due to the presence of the impurities in the crystal. So जो ये imperfection है, ये imperfection का जो cause है वो दो है. या तो absorption of heat by the crystal or by the solid from surrounding, या तो उस वजह से आपका क्या हो सकता है? imperfection जनरेट हो सकता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impurities. So this is the introduction of this topic. First of all, what is imperfection? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अपने परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से कहीं डिपार्ट हो जाना किसी भी क्रिस्टल में क्या कहलाता है? उस क्रिस्टल का इम्परफेक्शन. ये जो इम्परफेक्शन है ये दो तरीके से पॉसिबल है. फर्स्ट, ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट बाय द क्रिस्टल फ्रॉम द सराउंडिंग, या तो क्रिस्टल हीट को एब्जॉर्ब कर ले सराउंडिंग से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पोजीशन से डिपार्ट हो सकते हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज. Now defects are broadly classified into two categories. जो हमारे defects हैं वो defects हम broadly classified करते हैं किसमें? Two categories में. So classification of defects. So defects are broadly classified into two categories. One are known as point defects and other defects are known as line defect. एक तो हम क्या कहेंगे? एक डिफेक्ट को क्या कहेंगे? पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, और एक डिफेक्ट को क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट. नाउ वी विल सेपरेटली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू. हम इन दोनों की अलग से एक मीनिंग समझेंगे. क्लियर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? whenever the deviation from the ideal behavior exists
around a point or an atom, then the defect or then the crystal is said to have the point defect. कभी भी अगर आपका जो डिफेक्ट है, जो इम्परफेक्शन हो रहा है परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से, वो एक पर्टिकुलर एटम और पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हो रहा है. What is the definition of point defect? Whenever the deviation from the ideal arrangement exists around a point or an atom is known as point defect. Clear? Means around an atom or a point. So अगर एक एटम या पॉइंट के अराउंड आपका इम्परफेक्शन क्रिएट हो रहा है, सो वो डिफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट डिफेक्ट. बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग अ पॉइंट. हम उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इसी पॉइंट पे हमारा क्या है, आपका डिफेक्ट है. क्लियर? एंड व्हाट इज लाइन डिफेक्ट? लाइन डिफेक्ट क्या हो जाएगी? व्हेनेवर द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट in an entire row of the lattice point is known as line defect. अगर entire row of lattice point में अगर हमारी क्या है, प्रॉब्लम है, entire row of lattice point, then it is known as line defect. तब हम इसे क्या कहेंगे? line defect कहेंगे. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, दैट कम्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स एंड हमारे घरों के बीच में आपके नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? जिनसे आपके वायर्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअसली एड होते रहते हैं और वो हम तक पहुंचते हैं. सपोज अ डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वायर. अगर हमारी एक पर्टिकुलर वायर पे यानी बिटवीन टू पोल अगर हमारी डिफेक्ट प्रेजेंट है, दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट. वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट डिफेक्ट. और अगर इंटायर रो में अगर हमारा डिफेक्ट प्रेजेंट है, तो वो डिफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? लाइन डिफेक्ट. क्लियर? इन दिस चैप्टर we'll study detail the point defects. हम किसकी स्टडी करेंगे डिटेल में? पॉइंट डिफेक्ट्स की. नाउ पॉइंट डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जो पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, non-stoichiometric defects, and impurity defects. So first of all, defects are broadly classified into 2 categories, point defect and line defect. Whenever the deviation from the ideal behavior exists around a point or an atom, that is known as point defect. Or whenever the deviation from the ideal arrangement exists in an entire row of the lattice point, that is known as line defect. Point defects are further classified into 3 categories: stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and impurity defect. Now we'll study these 3 defects in detail. First, we'll take the first point defect, that is stoichiometric defect. पहले हम क्या लेंगे? फर्स्ट हमारा पॉइंट डिफेक्ट लेंगे, दैट इज stoichiometric defect. Now, what is stoichiometric defect? If in a crystalline solid, if imperfection occur in a crystalline solid in such a manner that the ratio between the cation and the ratio between the anion remains same as represented by the original molecular formula, it means the stoichiometry of the compound do not change, is known as stoichiometric defect. So stoichiometric defect हमारा क्या होगा? If imperfection अगर, जब हमारा imperfection होगा किसी भी crystalline substance में इस फॉर्म में कि रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी मेंटेन है, इट मीन्स this defect doesn't affect the stoichiometry of the compound, then these defects are known as stoichiometric defect. Now what do you mean by stoichiometry? Suppose I am writing a formula Fe2O3. मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ Fe2O3. In this 2 atoms of iron and 3 atoms of oxygen are present. Clear? It means the ratio of cation and the anion means जो ratio है हमारा Fe3 positive और O2 negative का वो किस फॉर्म में है? 2:3. So
if this defect occur in this compound, suppose अगर ये वाला defect stoichiometric defect इस compound में अगर exist करेगा, so it doesn't affect the stoichiometry of this compound. It means the ratio of Fe3 positive and the ratio of O2 negative remains 2/3 even after the defect. तो उन defects को हम क्या कहते हैं? Stoichiometric defect. So what are stoichiometric defect? In simple, which do not affect the stoichiometry of a particular compound. Now, if we talk about in non-ionic solids, अगर हम किसकी बात करें? Non-ionic solids की बात करें, so in non-ionic solids, the stoichiometric defect are of two types. जो नॉन आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट. फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट. इफ इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस some of the lattice point are vacant, then the crystal is said to have vacancy defect. अगर एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कुछ लैटिस पॉइंट आपके, कुछ लैटिस साइट हमारे वेकेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट? इन अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस में जो एक पॉइंट होता है, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट द लैटिस पॉइंट. क्रिस्टल लैटिस का जो एक पॉइंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट को. सो वैकेंसी डिफेक्ट in a crystalline substance, if some of the space, if some of the lattice point are vacant, then the defect is known as vacancy defect. Now suppose मेरे पास एक क्रिस्टल है, like this. I have a crystal. मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है. Now in this, the dark circles, जो मेरे dark circles हैं, the dark circles representing the constituent particles, whereas the empty circles represent the vacant space. So this is known as vacancy defect. इसको हम क्या कहेंगे? Vacancy defect. So in a crystalline substance, if some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. Now अगर vacancy defect है solid में तो क्या effect होगा? If vacancy defect is there in the solid, its density decreases. जो इसकी density हो जाती है वो क्या हो जाती है? Decrease. It means if a vacancy defect is present in a solid, the density of that particular solid becomes decreases. This is first defect in non-ionic solid. Now the second defect in non-ionic solid is interstitial defect. जो second defect है हमारा वो कौन सा defect है? Interstitial defect. Now what is interstitial defect? When some extra constituent particles occupy the interstitial site, the voids which are present in a crystal lattice, the crystal is said to have the interstitial defect. जब हमने जब पैकिंग पढ़ी, हमने कहा कुछ स्पेस आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है? एम्प्टी. दैट इज नोन एज वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड. सो व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है तो वहां पे आपका क्या जनरेट हो जाता है? हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. नाउ सपोज हियर इज Here is my crystal. ये मेरा एक crystal है, ठीक है, in which constituent particles are present in its position. Clear? Suppose एक extra constituent particle आ गया यहाँ पे, so this is known as interstitial defect. इसे क्या कहेंगे? Interstitial defect. And when vacancy defect is there in the solid, it decreases the density. But when interstitial defect is present in the solid, it increases the density. Increases the density of the solid. Clear? So in non-ionic solid, stoichiometric defects are of two types.
Vacancy defect, when some of the lattice site are vacant in a crystal, then this defect arise, or when some extra constituent particle present in the interstitial site, this defect, that is interstitial defect, arise. In vacancy defect, the density of the solid decreases, but in interstitial defect, the density of the solid increases. Now, if we talk about ionic solids, अगर हम किसकी बात करें, if we talk about ionic solids. Now, in ionic solids, the stoichiometric defect are of two type. जो stoichiometric defect होते हैं वो फर्दर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के. कौन कौन से? वन इज द Schottky defect and another one is Frenkel defect. Now first we'll explain the Schottky defect. We'll learn about the Schottky defect. Now what is Schottky defect? In a crystalline solid of the formula A positive B negative. Suppose in a crystalline solid of the formula A positive B negative, equal number of cations and anions are missing from their lattice site, so that the electrical neutrality as well as the stoichiometry of the compound remains same, then the compound have Schottky defect. Clear? अगर हमारे पास सपोज एक आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला A पॉजिटिव B नेगेटिव है, उससे अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस अगर क्या होते हैं आपके रिमूव होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वहां पे, दैट डिफेक्ट इज नोन एज Schottky defect. But due to this defect, neither the electrical neutrality or nor the stoichiometry of the compound disturb. ना ही electrical neutrality disturb होगी और ना ही आपका क्या disturb होगा, stoichiometry. For example, suppose in this compound A positive are 100 in number and B negative are also 100 in number. So stoichiometry क्या हो जाएगी हमारी, A 100, B 100, 100 cancel, so it becomes AB. Clear? Now I am saying that in Schottky defect, equal number of cations and anions are missing from their lattice site. It means suppose अगर यहाँ से 10 आयंस बाहर चले गए हैं A पॉजिटिव के, तो B नेगेटिव के भी कितने आयंस जाएंगे, 10. अगर A पॉजिटिव के 10 आयंस बाहर जाएंगे तो कितने आयंस बचेंगे, 90, and B negative also 90. Now the formula becomes A 90, B 90, and still the formula becomes A. Though the number of ions are less in number, but the stoichiometry of the compound remain same. So if in an ionic crystal equal number of cations and anions are missing from their lattice site, so that the electrical neutrality as well as the stoichiometry of that particular ionic compound do not disturb, then the crystal is said to have Schottky defect. क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे कि उस क्रिस्टल में हमारा क्या प्रेजेंट है, Schottky defect. अगर हम इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव. नाउ सपोज A पॉजिटिव इज मिसिंग फ्रॉम इट्स lattice site, B नेगेटिव, A positive, A positive, B negative, A positive, and B negative is also missing from its lattice site. So one cation and one anion is missing from its lattice site. Now this Schottky defect occur in those ionic compounds which fulfill two conditions. ये जो Schottky defect होगा हमारा, ये उन आयनिक कंपाउंड्स में होगा जो आयनिक कंपाउंड्स दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं. एंड व्हाट आर दोज टू कंडीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दोज आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई. जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए उन आयनिक कंपाउंड्स का, वो क्या होना चाहिए, हाई. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
बिकॉज एक आयन यहां से बाहर जा रहा है, क्लियर। सो उसका जो लॉस हो रहा है यहाँ पे क्रिस्टल का, उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आयंस क्या प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अराउंड प्रेजेंट होने चाहिए। सो फर्स्ट इज high coordination number. It means Schottky defect occur in those ionic compounds which have high coordination number, so that the loss which is done by the missing ions is contributed by the other ions. वो कौन contribute कर देंगे, हमारे other ions. And second, what is the second condition here? The size of cation and the size of anion. जो साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन है उसमें लिटिल डिफरेंस होना चाहिए। सो देयर शुड बी अ लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कैटायन एंड द साइज ऑफ द एनायन। सो Schottky defect occur in those compounds which have high coordination number, so that more number of ions are present around the missing site, ठीक है, जिससे वहां पे क्या हो सके, बैलेंस बना रहे। एंड साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायंस आर सेम, साइज ऑफ द कैटायंस और एनायंस क्या रहे, यहाँ पे सेम रहे, क्लियर। अब साइज ऑफ कैटायन और एनायन में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं होना चाहिए, हमें कब पता चलेगा, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट? अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट इज when a cation is missing from its lattice site, and to maintain the electrical neutrality or stoichiometry of a compound it occupy any of the interstitial site, then the defect is known as Frenkel defect. So Frenkel defect में क्या होता है, cation जाता है, anion नहीं जाता, लेकिन cation क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं जाता है, क्लियर। इन Schottky defect we studied that cations और anions बाहर निकल गए, क्लियर। बट इन Frenkel defect cation is missing from its lattice site, अपने lattice site से तो वो missing है, but to maintain the electrical neutrality of the compound or to maintain the stoichiometry of the compound, it doesn't leave the lattice, ये crystal lattice को नहीं छोड़ता, it occupy any of the interstitial site। ये क्या करता है, किसी भी interstitial site को क्या कर लेता है, occupy, like A positive, B negative, A positive, B negative. From here, suppose A positive is missing and it occupy here, clear? B negative, A positive, B negative, A positive, clear? It means जो आपका क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में आपका क्या हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस में जो आपका आयन है, आयन अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है, लेकिन क्रिस्टल को छोड़ के वो बाहर नहीं गया है। It means Frenkel defect is a combination of vacancy defect and interstitial defect। जो Frenkel defect है वो किसका combination है, vacancy, क्योंकि एक vacancy create हो रही है, और interstitial defect because यहाँ पे जो आयन है वो कहाँ ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन को, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। नाउ Frenkel defect जिन मॉलिक्यूल्स में होगा, क्लियर, जिन भी मॉलिक्यूल्स में, जिन भी आयनिक कंपाउंड जो Frenkel defect शो करेंगे, उनके लिए भी दो कंडीशंस है हमारी, जस्ट लाइक दैट ऑफ द Schottky defect। सो दोज आयनिक कंपाउंड विच शोज Frenkel defect शुड हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो? कोऑर्डिनेशन नंबर जितना कम होगा, स्पेस उतनी ज्यादा होगी, यानी टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। सपोज आई एम कंबाइनिंग फोर मैंने यहाँ पे क्या कंबाइन किए, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कंबाइन किए, दिस इज माई एम्प्टी स्पेस। नाउ आई एम कंबाइनिंग 6, इसके अराउंड में क्या करती हूँ, सपोज 6 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज करती हूँ लाइक दिस, 6 कॉन्स्टेंट पार्टिकल। सो जितने ज्यादा कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे, स्पेस उतना ही क्या होगा, कम होगा, एम्प्टी स्पेस उतना ही कम रहेगा। सो लो कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स लेस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एंड इफ लेस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, इट मीन्स मोर एम्प्टी स्पेस इज देयर एंड देयर इज मोर चांसेस ऑफ cation टू ऑक्यूपाई दोज एम्प्टी स्पेस। एंड सेकेंड, देयर इज अ लार्ज
large difference between the size of cation and anion, यानी कैटायन और एनायन जो होगा यहाँ पे उनके साइज में क्या होगा, काफी डिफरेंस होगा। बिकॉज साइज में डिफरेंस होने की वजह से ही क्या होगा, आपका जो कैटायन है वो बहुत छोटे साइज के होंगे, तो वो किसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, इंटरस्टिशियल साइट को। सो क्लियर, क्यों हमने कहा था दैट इन शॉर्टकी डिफेक्ट देयर इज नो such difference between the anion and the cation, ताकि cation interstitial site को occupy ना कर सके। And in this there is a large difference between the size of the cation and the anion, so that cation easily occupy the interstitial site which is present between the anions. So in Frankel defect the condition should be low coordination number and large difference between the size of the cation and anion. Now examples. What are the examples of the ionic compounds? If we talk about the Schottky defect, Schottky defect is present in compounds like NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl. इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, और जो साइज होता है कैटायन और एनायन का उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट, अगर हम फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करें तो जिंक सल्फाइड एज वेल एज सिल्वर हैलाइड्स लाइक AgCl, AgI, AgBr. Clear? These are the examples of the ionic compound which shows Frankel defect. Now, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, I have written an ionic compound in both the defects, that is AgBr. So AgBr, in AgBr both Schottky as well as the Frankel defect is present. Clear? So in stoichiometric defect, in non-ionic solid these are vacancy defect and interstitial defect, and in ionic solid the Schottky defect and the Frankel defect. Now we'll study the consequences of the Schottky and the Frankel defect. Means अगर आपका किसी भी क्रिस्टल में Schottky और Frankel defect जनरेट होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट Schottky defect, if Schottky defect is present in an ionic compound, the density of that ionic compound decreases. डेंसिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी अगर क्या प्रेजेंट है, Schottky defect. एंड इफ Frankel defect is present in an ionic compound, the density remain same. डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज Frankel defect में हो क्या रहा है, कैटायन एक पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, वो बाहर नहीं जा रहा है। सो in Schottky defect density decreases, whereas in Frankel defect Schottky remains same. If we talk about conductivity, so due to the formation of vacant spaces, आपका क्या होता है, जो Schottky defect और Frankel defect होते हैं वो सब्सटेंस को लिटिल बिट क्या प्रोवाइड करते हैं, कंडक्टिविटी. इट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट स्पेसेस. वेकेंट स्पेसेस होने की वजह से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत इनहेंस होती है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट स्पेसेस lattice enthalpy and stability of a compound decreases. Clear? It means there is a positive effect as well as the negative effect of vacancy. Vacant space होने की वजह से the compound become little bit more conductor, but due to the presence of the vacant space the lattice enthalpy and the stability of that particular solid decreases. And in Frankel defect ये तो हमारी क्या होगी, ये जो दो हैं ये दोनों के लिए है, it means Schottky as well as Frankel defect. But if we talk about the Frankel defect, in Frankel defect the similar charged particle come close to each other. ठीक है, आपका Frankel defect में क्या हो रहा था, कैटायन उठा अपनी पोजीशन से और कैटायन उठ के वो कहाँ चले गया, इंटरस्टिशियल साइड में. इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू कैटायन, सपोज दो कैटायन के बीच की डिस्टेंस इतनी है और कैटायन यहाँ से उठ के यहाँ चले गया. इट मींस नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कैटायन इज दिस मच, पहले इतनी थी, नाउ अब दिस मच. इट मींस द
similar charged ions come close to each other in Frankel defect, एक दूसरे के पास आते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसको भी वो क्या करते हैं, हिंडर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास पहले क्या था, फ्री मूवमेंट था, फ्री स्पेस था मूव करने के लिए। अब उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे चार्ज पार्टिकल्स ने। सो बिकॉज ऑफ दिस जो कंडक्टिविटी होती है, जो आपके करंट के फ्लो करने से जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, वो कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, लेस। Don't compare this conductivity with this point, because in this we are talking about general conductivity. But second में मैं कब किसकी बात कर रही हूँ, when I am passing the electricity, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ। So जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, जो आयंस इंटरस्टिशियल साइड पे आए हैं वो किसको हिंडर्ड करेंगे, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, as a result of which resistance increases, and due to the increase in the resistance dielectric constant also increases. So in Frankel defect, due to the interstitial site, like ions come close to each other, they create a hindrance on the movement of the electron, and movement of the electron में hindrance create होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि dielectric constant आपका क्या हुआ है, increase. So these are the consequences or these are the effects of the Schottky and the Frankel defect. Now we'll talk about non-stoichiometric defect. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, non-stoichiometric defect के बारे में. Second is non-stoichiometric defect. Now, if the imperfection in any crystalline substance is such that the ratio between the cations and the anions is different from that expressed in the original molecular formula, is known as non-stoichiometric compound. It means आपका कोई इम्परफेक्शन इस वे में किसी भी क्रिस्टल में हो रहा है कि रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन जो ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में था और जो अभी आफ्टर डिफेक्ट हमें जो रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन मिल रहा है वो अगर अलग अलग है, इट मीन्स जो डिफेक्ट है दैट इज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, बिकॉज दिस डिफेक्ट अफेक्ट्स द स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ कंपाउंड. एक फॉर्मूले की स्टोइकियोमेट्री को ये डिफेक्ट क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, एंड दैट वाई दीज डिफेक्ट्स आर नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. नाउ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन मेटल एक्सेस. पहले हमारे क्या होते हैं, मेटल एक्सेस. नाउ मेटल एक्सेस इट मीन्स केटायंस आर मोर, ठीक है, केटायंस आर मोर और एनायंस आर लेस. मेटल तभी एक्सेस होते हैं बिकॉज हमने क्या कहा, रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, और केटायन हमारा कौन बनाएगा, मेटल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल एक्सेस. तो मेटल कब एक्सेस हो सकते हैं, या तो मेटल ज्यादा हो या फिर नॉन मेटल कम हो. दो ही फॉर्म में हमारे क्या हो सकते हैं, मेटल एक्सेस हो सकते हैं. सो मेटल एक्सेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट बाय एनायनिक वैकेंसी. कब मेटल एक्सेस हो सकते हैं, बाय एनायनिक वैकेंसी. नाउ नेम ही इंडिकेट कर रहा है डिफेक्ट को, एनायनिक वैकेंसी, यानी एनायन जहां पे प्रेजेंट है हमारा वहां पे वैकेंट स्पेस है. क्लियर, एनायनिक वैकेंसी. So suppose I have a crystal A positive, B negative, A positive, B negative, B negative, A positive. In place of B, nothing is there. A positive, A positive, B negative, A positive एंड बी नेगेटिव. क्लियर, इट मीन्स ये हमारा है, तो यहाँ पे एनायन की जगह पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी. सो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो डिस्टर्ब, एंड इफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डिस्टर्ब इट बिकम अनस्टेबल. वो क्या हो जाएगा हमारा, अनस्टेबल. सो टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अ फ्री इलेक्ट्रॉन कमिट्स
दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम. इट मीन्स स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिस्टर्ब बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम. एंड इन दिस केस, ऐसे केस में जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एनायन की पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, दैट सेंटर इज नोन एज एफ सेंटर. उसे हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर. हेयर एफ मीन्स फाग, which is a German word which means color. Clear? Because due to the presence of this F center, इस F center के presence होने की वजह से ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्या अपीयर होता है, कलर. For example, suppose I have NaCl crystal, means in place of A positive, suppose I have Na positive, and in place of B negative, suppose I have Cl negative. ठीक है. नाउ सपोज आई एम हीटिंग NaCl क्रिस्टल इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम. मैं NaCl क्रिस्टल को हीट कर रही हूँ किसके एटमॉस्फेयर में, Na के एटमॉस्फेयर में. इट मीन सोडियम अराउंड, इस क्रिस्टल के अराउंड क्या प्रेजेंट है आपका, सोडियम. सो सोडियम क्या करेगा, इसके अराउंड स्टिक होगा. सोडियम इसके अराउंड स्टिक होगा तो क्लोरीन आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड्स द सोडियम. टूवर्ड्स द सोडियम व्हेन क्लोरीन आयन अट्रैक्टेड, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे स्टिक होके क्या बना देगा, NaCl. लेकिन उसकी पोजीशन क्या रह जाएगी, एम्प्टी. और उस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस. एंड बिकॉज ऑफ दिस द क्रिस्टल इम्पार्ट्स द येलो कलर. जो क्रिस्टल है वो क्या कलर इम्पार्ट करता है वहां पे, येलो कलर. सो एनायनिक वैकेंसी मीन्स anion is missing from its lattice side, and to maintain the electrical neutrality, a free electron occupies that particular lattice side. Then the defect is known as metal excess defect. और अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम A पॉजिटिव यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, A पॉजिटिव आर 6 in number and B negative 1 2 3 4 5. B negative are 5 in number. But in original formula हमारे पास formula क्या होगा, A6 B6. So due to this anionic vacancy, our stoichiometry formula disturbed, and that's why this is known as non-stoichiometric defect. So metal excess defect एक तो किस वजह से हो सकता है, by anionic vacancy, and second जो होगा यहाँ पे, सेकेंड जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पॉसिबल है वो किसकी वजह से है, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट. बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट. It means suppose I have A positive, B negative, A positive, B negative, I have a crystal like this. Here, now अब A positive कहीं पे यहाँ पे आ गया, suppose interstitial side में A positive आ गया. So to maintain the electrical neutrality, electron occupy any other interstitial site. Electrical neutrality maintain हो गई, but the number of cations are more in than that of the anions. जो number of cations है वो हमारे ज्यादा हो गए किसके comparison में, anions के comparison में. So metal excess defect arise either due to the anionic vacancy or due to the presence of the extra cation in the interstitial site. सो एक जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये है हमारा. सेकंड जो हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे दैट इज मेटल डेफिशिएंसी. सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, मेटल डेफिशिएंसी. सेकंड वी विल टॉक अबाउट मेटल डेफिशिएंसी. नाउ जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमें मिलेगा, this defect is present in those compounds in which the metals have variable oxidation state. ये डिफेक्ट मुझे उन मेटल के कंपाउंड्स में मिलेगा जिन मेटल्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है.
For example, copper has 2 oxidation state, +1 +2. Iron has 2 oxidation state, +2 +3. So जिन भी metals में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है उनमें हमें क्या मिलेगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. नाउ व्हाट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? In metal deficiency defect, one of the metal ion is missing from its lattice side, and any other metal ion which is present in that particular crystal lattice, it exists or it present or it forms one oxidation state more. It means suppose A positive, B negative, A positive, B negative, B negative, A positive, B negative, A positive. Suppose ये मेरे पास एक क्रिस्टल है and this is missing from its lattice side. ये क्या हो गया, अपने लेटिस साइड से मिस हो गया, यानी बाहर निकल गया. क्लियर? एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब, मेटल हमारा डेफिशिएंट हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एनी ऑफ द कैटायन कन्वर्ट इट ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर लेवल. कोई भी कैटायन क्या करेगा, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, हायर लेवल में कन्वर्ट कर लेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. सपोज इन A positive Fe2 positive is there and in B negative O2 negative is there. Clear? It means आपका जो Fe2 positive है, Fe2 positive, one of the Fe2 positive acquire Fe3 positive charge to form the metal deficiency defect. So these are the two examples of non-stoichiometric defect. Now we'll talk our third defect, that is known as impurity defect. नाउ जो थर्ड डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट का, वो हमारा क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. बिकॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई टोल्ड यू दैट दीज डिफेक्ट अराइज ईदर ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट बाय द क्रिस्टल फ्रॉम द सराउंडिंग और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द क्रिस्टल. So impurity defect means whenever impurities are present in the crystal, then the defect is known as impurity. And sometimes impurities are introduced in the crystal to enhance their properties. कभी कभी क्रिस्टल्स में आपका क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज को इंक्रीज किया जाता है, इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो सके, इनहेंस हो सके. जस्ट लाइक गोल्ड, वी नो दैट जो गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड इज नॉट सुटेबल टू मेक द ज्वेलरी. क्लियर? सो इन दैट पर्टिकुलर गोल्ड वी आर एडिंग द इम्प्योरिटी ऑफ द कार्बन. हम उस गोल्ड में किसकी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कार्बन की इम्प्योरिटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस द गोल्ड बिकम्स नाउ अवेलेबल टू मेक द ज्वेलरी. सो समटाइम इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन द solid or sometime we add impurity in the solid to enhance the property. And whenever the impurities are adding in a crystal, the adding of impurity is known as doping. किसी भी क्रिस्टल में जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं. नाउ whenever we add impurity in a particular crystal, we increase its conductivity. हम क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड्स, अगर हमने आयनिक सॉलिड्स में इम्प्योरिटीज को ऐड करना है, सो द इम्प्योरिटी शुड बी अ आयनिक कंपाउंड. जो इम्प्योरिटी है वो या तो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए या it should be present in an ionic form. Clear? It means if we have to add impurity in an ionic solid, the impurity should be present in ionic form. Suppose NaCl is doped with SrCl2. Clear? Now NaCl is doped with SrCl2. NaCl contain Na positive and Cl negative. SrCl2 contain Sr2 positive and Cl negative. It means आपका जो Na positive है, Na positive की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, Sr2 positive. And because its value is 2 positive, so by replacing 2 sodium ion, 1 Sr2 positive will come. So
it occupy one position of Na positive and the other remain vacant. यानी वहां पे क्या क्रिएट होगी हमारी वैकेंसीज और होल. क्लियर. सेकेंड, अब इफ वी टॉक अबाउट कोवेलेंट सॉलिड्स, अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो इन कोवेलेंट solids, if we talk about the 14th group elements like silicon and germanium, at 0 Kelvin, they can able to conduct, they are perfectly insulators. 0 Kelvin पे हमारे जो covalent solids होते हैं वो perfectly क्या होते हैं, insulators होते हैं. But ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर क्या होता है आपका, सम अमाउंट ऑफ हीट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम देयर पर्टिकुलर पोजीशन. कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, दे बिकम्स फ्री एंड अ लिटिल बिट कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व. बट वो कंडक्टिविटी आपकी बहुत ही क्या होती है, कम होती है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कोवेलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स. कोवेलेंट सॉलिड जनरली हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट इन जनरल, अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो अबव 0 Kelvin कोवेलेंट सॉलिड ऑल्सो बिहेव एज अ कंडक्टर एंड दीज कंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक कंडक्टर्स. Intrinsic conductors. So what are intrinsic conductors? Intrinsic conductors are those substances which have कंडक्टिविटी नेचुरली, जिनके पास नेचुरली कंडक्टिविटी होती है उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कंडक्टर्स. सो आयनिक सॉलिड एज वेल एज द कोवेलेंट सॉलिड एट 0 Kelvin दे बिहेव एज एन इंसुलेटर, बट ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, due to the delocalization of some of the electron, some amount of conductivity is observed in the covalent solid also. But जो कंडक्टिविटी का लेवल होता है वो ज्यादा नहीं होता है. तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं. नाउ वी आर एडिंग द इम्प्योरिटी एंड द इम्प्योरिटी शुड बी एन एलिमेंट. इम्प्योरिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एलिमेंट, एंड दैट एलिमेंट शुड कंटेन इलेक्ट्रॉन ईदर मोर और लेस देन द कोवेलेंट सॉलिड. जिस सॉलिड में हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में या तो ज्यादा प्रेजेंट होने चाहिए या फिर कम प्रेजेंट होने चाहिए. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट सिलिकॉन क्रिस्टल. नाउ सिलिकॉन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4. क्लियर. इट मीन्स इट इज सराउंडेड बाय सिलिकॉन फ्रॉम 4 sides. ठीक है, 4 साइड से किससे सराउंडेड होता है हमारा, सिलिकॉन से. एंड ऑल द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड. इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस सिलिकॉन सपोज आई इंट्रोड्यूस द नाइट्रोजन फैमिली, और मैं यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फॉस्फोरस. मैं किसको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फॉस्फोरस. नाउ इन केस ऑफ फॉस्फोरस द आउटर मोस्ट शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स. जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 5. नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, बट 1 इलेक्ट्रॉन हेयर रिमेन्स फ्री. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रह जाएगा, फ्री. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर. ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, कंडक्टर की तरह. एंड व्हेनेवर the conductivity arise due to the free electron, then the type of semiconductor is known as n-type semiconductor. जो कंडक्टर का टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, n-type semiconductor. ठीक है. नाउ n-type semiconductor याद रखने का सिंपल जो फॉर्मूला है वो क्या है, here the conductivity is due to the presence of free electron. इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, एंड नेगेटिव स्टार्ट्स फॉर एन, दैट्स व्हाई इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. एंड इफ वी टॉक अबाउट, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, बोरॉन फैमिली की. इफ आई टॉक अबाउट बोरॉन फैमिली, अगर बोरॉन फैमिली के मेंबर को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ, सो वी नो दैट इन बोरॉन फैमिली द आउटर मोस्ट शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, बट हेयर 1 space remain empty and that space is known as hole. उसको हम क्या कहेंगे, होल. नाउ ये होल क्या करेगा, एडजेसेंट से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन कम्स हेयर. इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और होल कहाँ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ. इन दिस वे इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल मूवमेंट इज टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर इज फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या क्रिएट हुआ, आपका चार्ज फ्लो करना जनरेट हुआ है, यानी कंडक्टर ये बने हैं, और दिस कंडक्टर इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द होल। ठीक है, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स द टाइप ऑफ कंडक्टर इज पी टाइप सेमी कंडक्टर। सो इन पी टाइप सेमी कंडक्टर किसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, ड्यू टू होल, एंड इन एन टाइप सेमी कंडक्टर किसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डोपिंग। डोपिंग में हमने क्या पढ़ा, दैट एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टल इज नोन एज डोपिंग। नाउ जो डोपिंग होती है वो आपकी नेचुरली भी प्रेजेंट होती है और हम आर्टिफिशियली भी परफॉर्म करते हैं टू इनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अगर हम आपके आयनिक सॉलिड्स की बात करें, सो इन आयनिक सॉलिड्स द इम्प्योरिटी विच वी हैव टू ऐड शुड बी प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म, और वहां पे क्या क्रिएट होंगी, हमारी वैकेंसीज क्रिएट होंगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स में हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एलिमेंट्स विच हैव इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल ईदर मोर और लेस। और इसी बेसिस पे हमने पढ़ा वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मींस नेचुरल सेमीकंडक्टर्स, बट उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने पढ़ा दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। So guys, that's all for today. I'll see you in my next video with new topics.